Welcome students. This is the third part of chapter 1, that is the Indian economy on the eve of independence. This is our next topic, that is demographic condition. What is demographics? Demographics is the study of a population based on socio-economic factors such as age, race and sex, education level, income level, marital status, occupation, religion, birth rate, death rate. That means anything which describes the type of population, what are the occupation the population of a country is engaged in, what are the death rate, birth rate, what is the sex ratio, these are all described in demographics. The first census, that is the first official census conducted in the year 1881 to get to know the condition of demographic in Indian economy. Then what was the condition? First point is high birth rate and death rate. In India, both the birth rate and death rate was very high on the eve of independence. What is birth rate? Birth rate is total number of live birth per thousand population, which is 48 per thousand population. Then what is death rate? Death rate is total number of death per thousand population, which was 40 per thousand. What does it suggest? It suggests the massive poverty in the country. Year 1921 was described as year of Great Divide. Why it is described as year of Great Divide? Because before this the population of India was never consistent. That means the size of population keep on fluctuating from one census to another census. And after 1921 the population recorded the consistent rise. बिकॉज 1921 के बाद जो पॉपुलेशन थी हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी और उसकी वजह से क्या किया, विच लेड टू द एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाट इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर? इट इज़ द एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट. तो हुआ क्या, 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंसिस्टेंट हुई, कंसिस्टेंटली राइज होने लगी. उसके बाद जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. अगर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, इट लेड टू डिक्रीज़ इन ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट. जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डिक्लाइन हो जाएगी एंड इट शोज द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन इन द इकॉनमी. India was in the first stage before 1921 of demographic transition, and after 1921 it comes to the second stage of demographic transition. Then what is demographic transition? Demographic transition is a model which used to represent the movement or transition from high birth rate and death rate to low birth rate and death rate as a country develops. जैसे ही हमारी कंट्री डेवलप होने लगती है तब क्या होता है, शुरू में जब कंट्री हमारी डेवलप होने लगती है तो पहले हाई बर्थ रेट और डेथ रेट से जो लो बर्थ रेट और डेथ रेट है वहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो ट्रांजिशन हो जाती है और इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इन द मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वी हैव 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई. इन द सेकेंड स्टेज birth rate is still high and death rate starts declining. In third stage birth rate also starts decreasing, and in the fourth stage both the birth rate and the death rate is low. It is depending upon the development of a country. As the country develops, the country keeps on moving from first stage to next stage. Okay, let us understand the first stage, that is the high birth rate and high death rate, which leads to less population growth. How population growth is calculated? It is calculated as by subtracting death rate from the birth rate. Then population growth is calculated.
तो ये हमको क्या शो कर रहा है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो हमारी बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाएगी. देन नेक्स्ट स्टेज इज, दैट इज द सेकेंड स्टेज इज हाई बर्थ रेट बट डेथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. इन द सेकेंड स्टेज बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होने लगा है, बिकॉज नाउ कंट्री स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. Because of medical facilities are available, food is available, diseases are less. अगर ये सब होगा, अगर डिजीज़ कम हो जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो डेथ रेट होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा. बट बर्थ रेट इज स्टिल हाई, दैट लीड्स टू लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ. तो हमारी कंट्री में क्या हुआ, उसके बाद जो मैंने आपको बताया है, आफ्टर 1921 देयर वॉज the condition of high population growth. That is why 1921 is described as year of great divide. The next feature is low literacy rate. In our country there was very less literacy rate. It is less than 16% overall and the female literacy rate was only 7%, which shows the gender biasness in the country. हमारी कंट्री में जेंडर बायसनेस की जो प्रॉब्लम है वो शुरू से ही रही है, तो यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल रही है. देन नेक्स्ट फीचर इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट्स जो हैं उनकी मोर्टेलिटी, इन्फेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट? इन्फेंट इज़ अ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल से कम बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है उनको उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, which was very high. It was approx 118 per 1000 infants. So ये भी हमारा बहुत ज़्यादा रहा था, लेकिन अभी कितना है, it is only 34 per 1000 of population. अभी बहुत कम हो गया है. तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या शो करता है, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमें क्या शो करता है, इट शोज़ that there was healthcare facilities were not available and which is linked to the extreme poverty in the country. Next is low life expectancy which was 32 years. Life expectancy क्या शो करता है, ये हमें शो करता है, this is the expected number of years the person will live, जो कि 32 years ही था, लेकिन अभी कितना है, अभी इट इज़ अबाउट 68 ईयर्स. दैट मीन्स देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस रेशियो ऑल्सो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी. दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या शो करता है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. अब हुआ क्या, जो हमारी कंट्री में है एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, द 72.7% अप्रॉक्स पॉपुलेशन वर एंगेज, दैट इज द वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और दैट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर देम. And only 10% of working population were engaged in secondary section and 17% of population were engaged in tertiary sector. लेकिन ये हमें रेशियो क्या शो करता है, इट शोज द अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन द कंट्री. वाई इट शोज द अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन द कंट्री? बिकॉज द टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. मतलब कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं वो अपनी अभी इन्फेंट स्टेज पे ही थे, दे वर नॉट फुल्ली ग्रोन सेक्टर. और जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हमारी अप्रॉक्स 72% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो तो ज़्यादा था, बट देयर शेयर इन जीडीपी ग्रोथ वाज ओनली 50%. तो जो शेयर है जीडीपी में वो हमारा बहुत ही कम था एग्रीकल्चर सेक्टर का. दैट मीन्स इट शोज द बैकवर्डनेस वर प्रिवेलिंग इन द इंडियन इकॉनमी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स.
Although Britishers ruled on us and exploited our economy excessively, but there are some positive contributions also. First is introduction of railways. रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन मेनली जो था वो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को भी काफ़ी मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनहांसेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस because it make very easier for the Indians to move from one place to another and get the chance of getting employed. एंड नेक्स्ट इन इस फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि जो लीडर्स थे हमारे, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे हमारे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजीली जा सकते थे और अपना जो भी नेशनल मूवमेंट का जो भी आगे का जो प्लान था उसको कर सकते थे. ओके और रेलवेज़ का एक और ये रहा, इट हेल्प्स इन चेक ऑन फेमाइंस, बिकॉज जहाँ पर भी फेमाइन होती थी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती थी, ड्रॉट की प्रॉब्लम हो जाती थी, वहाँ पर जितना भी फूड मटेरियल, फूड सप्लाई जितनी भी कर सकते थे, मेडिसिन्स वगैरह जितनी भी कर सकते थे, रेलवे के थ्रू बहुत ही इजीली हो गई, जिसकी वजह से जितने भी जो ऐसे एरिया थे जो जिन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, ऐसे एरिया में भी रेलवेज़ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हमारे वो फेमाइंस को कंट्रोल करने में. नेक्स्ट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ऑल्दो उन्होंने जो एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन किया था वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स था, क्योंकि उन्होंने जो भी कमर्शलाइजेशन किया था उसका जो मेन बेनिफिट मिला था वो ब्रिटिशर्स को मिला था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता था या फिर अदर जो नॉन फूड क्रॉप्स थी उनका जो कल्टीवेशन होता था, कॉटन, जूट, वो सारे यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो ब्रिटेन में ले जाया करते थे और फिर वहाँ से फिनिश गुड्स बनाकर हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया जाता था. लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनको एक नया आउटलुक मिला. उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो मार्केट प्राइस हैं प्रोडक्शन के उसको कंसिडर करना स्टार्ट किया, बिकॉज इससे पहले जो फार्मिंग थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी. दैट मीन्स दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग सरप्लस सो दैट दे कैन सेल इन द मार्केट. तो वो जितना प्रोड्यूस करते थे उतना ही कंजम्पशन उसका कर लेते थे, तो उनको मार्केट प्राइस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था. नाउ उनके जो आउटलुक है उसमें इतना ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि जैसे ही कमर्शलाइजेशन हुआ और उन्होंने मार्केट अनसर्टेनिटीज़ को देखा, बिकॉज जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मार्केट प्राइस डाउन हो रहा है तो इनकम उनकी रिड्यूस हो रही है. देन इसका एक ये भी था कि अगर जिस चीज़ का, जिस भी क्रॉप का प्राइस ज़्यादा है वो उसी को कंसिडर करते थे कि नेक्स्ट से जो क्रॉपिंग सीज़न होगा उस टाइम पे उसी क्रॉप को वो लोग उगाएंगे. तो मेनली क्या हुआ, इससे जो फार्मर्स का जो आउटलुक था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसने हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे ब्रिंग मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस इन इंडिया, बिकॉज बिफोर दैट देयर वाज अ कंडीशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज इज़ द कमोडिटी इज़ एक्सचेंज फॉर कमोडिटी. एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज की जा रही थी, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम ऐसे कुछ था नहीं. लेकिन इसके बाद जो पैसों का जो इंट्रोडक्शन जो वगैरह हुआ वो इनके बाद ही हुआ था. देन दे ब्रिंग इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे चलाया, जैसे पुलिस क्या कैसे वर्क करेगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे वर्क करेगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एफिशिएंटली कैसे रन करना है, ये हमने ब्रिटिशर्स से उनके टाइम पे ही सीख लिया था और हम काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे. बाद में भी जैसे ही हमारी कंट्री ने हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, हमने वही उसी टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही हमने अपनी कंट्री में बाद में भी फॉलो किया. So these are the positive contribution of Britishers. So this chapter is over now. I will meet you in the next class.